السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سمینا رانا۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ دوبارہ لاک ڈاؤن خارج امکان قرار، پاکستان مزید لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ٹائیگر فورس ٹڈی دل کے خلاف انتظامیہ کی مدد اور کلین ڈریم مہم کا حصہ بنے گی۔ مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی سے متعلق معلومات کے علاوہ SOPs پر عمل درآمد کرانا ٹائیگر فورس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں بجٹ اجلاس، مشیر خزانہ کی قیادت میں حکومتی معاشقین کی بریفنگ۔ کورونا کے باعث ہر طبقہ متاثر ہوا ہے، موجودہ معاشی حالات کے پیش نظر اصلاحات کے عمل کو تیز کیا جائے، آئندہ بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے۔ وزیر اعظم پاک فوج نے ایک اور بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا۔ بھارتی کوڈ کاپٹر پاکستانی حدود میں 500 میٹر اندر آ گیا تھا۔ کوڈ کاپٹر کو LOC کے خنجر سیکٹر میں گرایا گیا۔ پاک فوج نے رواں سال 8واں بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا ہے۔ DG ISPR سینٹ میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم و تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مذمتی قرارداد متفقہ منظور۔ اقوام متحدہ سے مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم و تشدد کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ تنازع کشمیر کے حل کے لیے جدوجہد جاری۔ سید علی گیلانی کی ساری زندگی کشمیری عوام اور آزادی پسند قیادت کے لیے مشعل راہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں کا مجلس شورا کے اجلاس میں پارٹی چیئرمین سید علی گیلانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرنے کے عزم کا احاطہ۔ ملک میں کورونا وائرس سے اموات اور کیسز میں تیزی سے اضافہ، ایک دن میں 4,734 نئے کیسز کی تصدیق، مجموعی تعداد 93,983 ہو گئی، 97 افراد جان کی باسی ہار گئے، 32,581 صحت یاب۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو $50 ہنگامی امداد کے علاوہ $3 کروڑ مزید فراہم کرے گا۔ اسلام آباد میں معاہدوں پر دستخط، رقم انسداد کرونا، صحت کی خدمات میں بہتری، حفاظتی آلات اور احساس پروگرام میں استعمال ہوگی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کورونا وائرس کے عدم پھیلاؤ اور آگاہی کے فروغ میں سرگرم عمل، عوام کی صحت سے متعلق مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک نگہبان موبائل ایپ کا اجرا۔ ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے اقدامات جاری، کسانوں کی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں، چین سے اسپرے کرنے والے ڈرون درآمد کریں گے۔ وفاقی وزیر سید فخر امام کی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں کا فضائی دورہ، ٹڈی دل کی صورتحال اور فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات بروئے کار لائے جائیں، سردار عثمان بزدار۔
43 मुतासरा अजला में टिड्डी दल के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन, 2.5 करोड़ हेक्टेयर रकबे का सर्वे, 5,15,600 हेक्टेयर रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 68,44,000 से तजावुज कर गई। 4 लाख के करीब मरीज जान की बाजी हार गए। 33,48,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब। अमेरिका में 1,11,000 से ज्यादा हलाक, 19,66,000 के करीब मुतासर। भारत सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया। 6,649 अफराद हलाक, 2,36,000 से ज्यादा मुतासर। अमेरिका के बाद मेक्सिको में भी एक मजदूर की पुलिस की तहवील में हलाकत के बाद हंगामे फूट पड़े। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए, पुलिस की गाड़ियां नजर आतिश। मेक्सिको शहर में अमेरिकी सफारत खाने पर भी मुजाहिरीन का पथराव। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीजन 2020-21 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। अनम अमीन, उमैमा सुहेल समेत 9 खवातीन क्रिकेटर शामिल। बिस्मा मारूफ, जवेरिया खान और डयाना बेग की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की। पीसीबी का मुआवजों में भी इजाफे का ऐलान। और उमर अकमल सजा केस, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज 11 जून को केस की समाअत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर ने बतौर आजाद मुंसिफ फ्रीकैन, पीसीबी और उमर अकमल को नोटिस जारी कर दिए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोबारा लॉकडाउन को खारिज इम्कान करार दे दिया है। कोरोना टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क अब मजीद लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कारोबार बंद करने से टैक्स महासिल में 800 अरब रुपए की कमी हुई है। रिपोर्ट करेंगे व्यास पर की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्क अमेरिका भी गैर मुय्यना मुद्दत तक लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता और वहाँ लोग कतारों में खड़े होकर खाना वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले ही मुश्किल मुआशी सूरत हाल का सामना था, ऐसी सूरत में मजीद लॉकडाउन की गुंजाइश नहीं है। ये मुल्क अब लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमें अब तक 800 अरब रुपए का हमारा जो टैक्स है उसके अंदर कमी आई। जब हमारी हुकूमत आई तो पहले साल में जितना हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया था उसका आधा कर्जों की किस्तें अदा करने में चला गया। 5,000 अरब रुपया अब तक हम दे चुके हैं पिछले हुकूमतों की कर्जे लिए हुए उनके सूद देने पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान मुसलमान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ रमजान के दौरान तरावी की इजाजत दी गई। उलमा ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और मसाजिद से कोरोना के फैलाव का कोई वाकया सामने नहीं आया। SOPs के ऊपर अभी भी लोग अमल करना शुरू करें तो मेरा पूरा यकीन है कि हम मुश्किल वक्त से नहीं गुजरेंगे जो कई दुनिया के अंदर मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ब्राजील साउथ अमेरिका के अंदर मुल्क है, उधर एक दिन के अंदर 1350 लोगों की अमवात हुई। अमेरिका में 2000 से ज्यादा लोगों की दिन में फौत किया हुई। तो शुरू से जो हमने कदम उठाए अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे बच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना वबा से निपटने के लिए रजाकारों की मदद ली गई, मगर पाकिस्तान के 10 लाख रजाकारों की तादाद सबसे ज्यादा है। हम आपको बाकायदगी से जो हमारी CCOP जो हर रोज हम बैठ के सारे मुल्क का जायजा लेते हैं, हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, किधर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, वायरस किधर फैल रही है, तो हम आपको वहाँ गाइड भी करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े और अगर जब बंद करते हैं तो फिर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन ये इस मुश्किल वक्त में होगी कि आप लोगों में शऊर पैदा करें, और अगर आप कामयाब हो जाते हैं शऊर पैदा करने में तो उससे होगा क्या। ये जो केसेस बढ़ रहे हैं
ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि टाइगर फोर्स मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाने के प्रोग्राम में भी इंतजामिया से ताउन करेगी। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा माशी हालात का तकाजा है कि इस्लाहात का अमल तेज किया जाए ताकि अवाम पर पड़ने वाला गैर जरूरी बोझ कम किया जा सके। इस्लामाबाद में आइंदा बजट के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर तरक्याती अखराजात में कमी लाना, खुसूसन गैर जरूरी हुकूमती अखराजात में कटौती मौजूदा हुकूमत की रोज़े अव्वल से तरजीह रही है। इस मकसद को आगे बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से हर तबका मुतासिर हुआ है। मईशत को इस्तेहकाम देने और तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिशें मुतासिर हुई हैं। हुकूमत की तरजीह है कि इन शोबों को खुसूसी तौर पर फरोग दिया जाए जिनसे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सब्सिडी दरहकीकत अवाम के टैक्स का पैसा है, लिहाजा पैसे का बेहतरीन और मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। मुशीर खजाना की क़यादत में हुकूमती मुआशी टीम ने वज़ीर आज़म को आइंदा बजट की महसूलात, अखराजात और हुकूमत की तरजीहात को अमली जामा पहनाने से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। और पाक फौज ने एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। DGISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी हुदूद में 500 मीटर अंदर आ गया था। क्वाडकॉप्टर को LOC के गंजर सेक्टर में गिराया गया। पाक फौज ने रवा बरस 8वां भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची में तैयारा हादसे में शहीद होने वालों रजा नकवी, मुसर्रत जार खान, इफ्रा शाहिद, एरिक सेवन, शहनाज परवीन और जैनुल आरिफ के अहले खाना को टेलीफोन किया और उनसे गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर ममलिकत का कहना था कि इस कौमी सानहे पर पूरी कौम सोगवार है। सदर ममलिकत ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। कौमी असम्बली ने कबायली असलाह और पाकिस्तान के लिए रुकन कौमी असम्बली मुनीर औरकज़ई की खिदमात को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। तफसील बताएंगे मियां मोहम्मद समी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास की मामूल की कार्रवाई को मुअत्तल करते हुए कौमी असम्बली के वफात पा जाने वाले रुकन मुनीर खान औरकज़ई के लिए ताज़ियती इजलास में बदल दिया। मुनीर औरकज़ई की खिदमात को सराहते हुए पार्लिमानी उमूर के मुशीर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि पार्लियामेंट की सबसे बड़ी रिवायत लॉबिंग होती है जिसमें इनका कोई सानी नहीं था। पाकिस्तान के ऊपर उनका ईमान और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ऊपर उनका ईमान गैर मुतज़लज़ल यकीन और गैर मुतज़लज़ल ईकान वाला था। हवाबाजी के वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा कि मुनीर औरकज़ई बहुत हलीम, खलीक और शफीक इंसान थे। मुझे अफसोस हुआ लास्ट सेशन में जब वो बीमारी की हालत में यहाँ से निकले, डिस्पेंसरी में मैंने उन्हें ज्वाइन किया, वो खुद उस हालत में हौसला मुझे दे रहे थे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुनीर औरकज़ई इस ऐवान के कई बार रुकन रहे। बहुत अच्छा इंसान था। जितनी बार वो असेंबली में आए उन्होंने अच्छी यादें असेंबली में छोड़ी। खुसूसन जब फाटा का इंटीग्रेशन का मसला आया तो उसमें बड़ा वो पेश थे। मौलाना अब्दुल अकबर चित्रादी ने कहा कि मुनीर औरकज़ई एक मंझे हुए सियासतदान थे। उन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए जो खिदमात दी हैं वो याद रखी जाएंगी। मुनीर औरकज़ई साहब इस्लाम से मोहब्बत रखने वाला, पाकिस्तान के साथ वालिहाना मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान के मसाइल को हल करने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि उन्होंने साबिक फाटा के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। मुनीर खान औरकज़ई एक सच्चे पाकिस्तानी थे। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचा और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी। मौलाना असदुर रहमान ने कहा कि हमारे लिए आज गम का दिन है और जमीयत उलमा इस्लाम को मुनीर खान औरकज़ई की वफात से बड़ा नुकसान हुआ है। हम दुआगो हैं, ताज़ियत करते हैं उनके ख़ानदान से और अपने इन तमाम पार्लियामेंटेरियन से, क्योंकि उनका यहाँ पर तमाम पार्लियामेंटेरियन के साथ, तमाम पार्टियों के साथ जो ताल्लुक़ था वो मोहब्बत का था। बहुत
नफीस आदमी थे। कौमी असम्बली के इजलास में सूबाई और कौमी असम्बली के वफात पा जाने वाले इरकान, PIA त्यारे हादसे में जहाँ बाक होने वालों, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में जहाँ बाक होने वालों की रूह के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की गई। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी हो गया। मियां मोहम्मद समी, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा किया गया है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म व तशद्दुद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। तफसील बता रहे हैं फाहद जावेद। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजानी की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक ने मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और भारतीय जुल्म व तशद्दुद के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद ऐवान में पेश की, जिसको मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। वक्फा सवालात में सनअत व पैदावार के वजीर हमाद अजहर ने ऐवान को बताया कि स्टील मिल में गुज़श्ता 5 सालों में तनख्वाहों की मद में 35 अरब रुपए अदा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों ने न स्टील मिल को बहाल किया और न ही इसकी निजकारी की। हुकूमत स्टील मिल की निजकारी में निजी शोबे को शामिल कर रही है। एक सवाल के जवाब में हमाद अजहर ने कहा कि IMF की पाकिस्तान के हवाले से तमाम रिपोर्टें उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। IMF ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा है। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने ऐवान को बताया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से पॉलिसी 2019 की मंजूरी दे दी गई है। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद में मुतअद्दिद टैक्सों में छूट दी गई है। वजीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद ने ऐवान को बताया कि GSP प्लस के हवाले से हुकूमती इक़दामात के बायस 2022 तक यूरोपीय यूनियन ने GSP प्लस की शर्त को खत्म कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की मसनूआत को यूरोपीय मंडियों तक रसाई में मदद मिलेगी। मुल्क में कोरोना वायरस, त्यारे हादसे और दीगर हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए ऐवान में फातिहा खानी की गई। सेनेट का इजलास 8 जून शाम 4 बजे तक मुलतवी हो गया। फाहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी लॉकडाउन, फौजी मुहासरे और मवासिलात पर पाबंदी को 10 माह मुकम्मल हो गए हैं। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता 10 माह में भारतीय काबिज फौज ने कश्मीरी लोगों के तमाम हुकूक की खिलाफ वर्जी की और उन्हें दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। ऐसे हालात में जब आर्मी बिरादरी कोरोना वायरस के खिलाफ नंबर आसमां है, भारत मकबूजा कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील करने में मसरूफ है। भारतीय काबिज फौज मावराए अदालत कत्ल और जाली मुकाबलों के जरिए कश्मीरी नौजवानों को बर्बरियत का निशाना बना रही हैं। भारत को यह समझ लेना चाहिए कि वो पिछली 7 दिहाइयों में कश्मीरियों को मजालिम के जरिए दबाने में नाकाम रहा है और आइंदा भी नाकाम रहेगा। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस दें और भारत को इसके जराइम का जिम्मेदार ठहराएं। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का इआदा किया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सैयद अली गिलानी की हिदायत पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मजलिस शूरा का अहम इजलास जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद की सदारत में श्रीनगर में हुआ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी नजरबंदी के बायस इजलास में शिरकत न कर सके। इजलास में मकबूजा इलाके में बढ़ती हुई भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की गई और अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से अपील की गई कि वो भारतीय मजालिम का नोटिस लें। इजलास में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने अपने चेयरमैन सैयद अली गिलानी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज़ादी कश्मीर के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी की जिंदगी जिद्दोजहद करने वाले कश्मीरी अवाम और उनकी आज़ादी पसंद क़यादत के लिए मशअल राह है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मजबूत बुनियादों पर कायम है, लिहाजा नाकामी उन अनासिर का मुकद्दर है जो अपने ज़ाती मफादात के लिए सैयद अली गिलानी की अदालत का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। इजलास में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के इजलास में किए गए फैसलों की मुकम्मल हिमायत और मोहम्मद हुसैन खतीब के कायम मकाम कन्वीनर मुंतखब होने की तौसीक की गई। जारहियत के शिकार बच्चों के आलमी दिन पर कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि 1 जनवरी 1989 से रवां साल 4 जून तक शहीद होने वाले कश्मीरियों में 897 कश्मीरी बच्चे शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर यूथ सोशल फोरम के रहनुमा जुबैर हुसैन मीर ने इस्लामाबाद में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए जनूबी कश्मीर में मुहासरे और तलाशी की बढ़ती हुई कार्रवाइयों और बड़ी तादाद में नौजवानों की गिरफ्तारी पर सख्त तशवीश का इजहार किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उबूरी कन्वीनर मुस्तफा मोहम्मद हुसैन की क़यादत में नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में हालिया दिनों में कश्मीरी नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना था कि भारत कोरोना की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर रहा है और कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील करने पर तुला हुआ है। हुर्रियत रहनुमाओं ने भारत की तरफ से सहाबियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मजम्मत की। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,734 केसेस का इजाफा हुआ, जबकि 97 अफराद जहाँ भक हुए हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासर अफराद की तादाद 93,983 हो गई है। वायरस से जहाँ भक होने वालों की तादाद 1,935 है, जबकि 32,581 सेहतयाब हो गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 4,323, पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889, खैबर पख्तूनख्वा 12,459, बलोचिस्तान में 5,776, गिलगित बल्तिस्तान में 897 और आजाद कश्मीर में 331 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ने कोरोना के अदम फैलाव, आगाही और वेंटिलेटर्स के अस्पताल में दस्तयाबी के हवाले से पाक निगहबान ऐप लॉन्च कर दी। मुल्क भर में 1110 अस्पतालों को पाक निगहबान ऐप से मुंसलिक किया गया है। ऐप किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जिंदगी बचाने में इंतहाई मुआवन साबित हो सकती है और कोई भी शहरी नजदीकी अस्पताल में वेंटिलेटर्स और बिस्तरों की दस्तयाबी से मुतालिक आगाही हासिल कर सकता है। नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ने रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा कर दिया है। RMS सिस्टम के जरिए मुल्क भर में 15,459 अस्पतालों को मुंसलिक किया गया है। इस सिस्टम के जरिए सूबे अपने अस्पतालों के अंदर मौजूद सहूलतों का जायजा ले सकते हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में बताया गया कि सेंटर की खुसूसी टीम कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डॉक्टर फैसल सुल्तान की सरबराही में कराची पहुंच गई है। खुसूसी टीम में माहिरीन सेहत और इंतजामी अमला भी शामिल है। इजलास में बताया गया कि फौरन सूबों में SOPs पर अमल दरामद का भी जायजा ले रहा है। पंजाब में मुख्तलिफ मार्केट्स, बाजारों, ट्रांसपोर्ट और सनती इलाकों की जांच के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। हिदायत पर अमल न करने पर 100 से ज्यादा मार्केटें, 11 सनतें और 232 गाड़ियां बंद की गईं। सिंध में मौसम मीडिया मुहिम के बायस SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक अवामी शऊर उजागर करने में मदद मिली है। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी आगाही मुहिम नो मास्क नो सर्विस शुरू की गई है और इस मुहिम के तहत आबादी में मास्क बांटने के अलावा मुख्तलिफ दफातर में काम करने वालों के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया है। सूबे में SOPs पर अमल न करने पर 473 दुकानें और 6 मार्केटें सील करने के साथ साथ 300 से ज्यादा गाड़ियों को जुर्माने भी किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी नो मास्क नो सर्विस मुहिम पर अमल दरामद किया जा रहा है। हिदायत पर अमल दरामद न करने पर अब तक 8 इलाकों समेत 440 दुकानों को सील किया गया है। सिंध में आवाम से मास्क और ग्लव्स पहनने की पुरजोर अपील की जा रही है। सूबे में जुमे के दिन कोरोना के सबसे ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कोरोना मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा अतिया किया है। मजीद तफसीलात बताएंगे ज़ीशान अहमद। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस के हवाले से अपने बयान में कहा है कि 1,353 केसेस सामने आए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,377 टेस्ट किए गए हैं, जो अब तक सबसे ज्यादा टेस्ट हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मर्ज में मुब्तला 1,000 अफराद सेहतियाब होकर अपने घर जा चुके हैं। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कराची में कोरोना के मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा अतिया किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज के सरबराह ताहिर शमसी ने इस अमल की निगरानी की। हमारा फर्ज बनता है कि हम जितनी जानों को बचा सकें वो बचाएं। जो एंटीबॉडीज एक कोरोना पेशेंट रिकवरी के बाद बॉडी में डेवलप होती हैं, 4 दफा आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं।
इस मौके पर डॉक्टर ताहिर शमसी का कहना था कि प्लाज्मा लगाए जाने वाले कोरोना के 80% मरीज वेंटिलेटर पर जाने से महफूज रहते हैं। जिशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। उधर खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से मुतासर अफराद की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर अस्पतालों में मौजूद सहूलतों और दीगर मामलात की तफसील बताएंगे मुदस्सर खान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आलमी वबा से मुतासर होने वाले अफराद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल में सूबे के अस्पतालों को दस्तयाब वसाइल के मुताबिक सहूलियात फराम किए जा रहे हैं। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने कहा कि सूबे में वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं, अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए हर मुमकिन इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए तकरीबन 5,500 बेड्स और 500 से ज्यादा वेंटिलेटर्स मुख्तस हैं। हमारे पास इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह बेड्स की कमी नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। मुशीर इत्तलात ने सूबे में पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी से मुतालिक कहा कि आटे और गंदम का मसला कौमी रब्ता कमेटी में उठाया गया है और वजीर आज़म इमरान खान ने मसले के हल की भरपूर यकीन दहानी कराई है। सूबे में पेट्रोल की किल्लत के हवाले से उन्होंने कहा कि वजीर आला महमूद खान ने पेट्रोल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत कर रखी है, जिसके मुताबिक सूबा भर के तमाम अजला में इंतजामिया पेट्रोल की मसनूई कीमत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर के हमरा पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम चकड़ा ने कहा कि पिछले 3 महीनों में कोरोना वायरस के बायस रेवेन्यू में 100 अरब रुपए का फर्क आया है। उन्होंने बताया कि आइंदा माली साल का बजट सूबे की तारीख में मुनफरिद बजट होगा, जिसमें न सिर्फ सेहत के लिए रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस किए जाएंगे बल्कि अगले बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में कोरोना वायरस से निपटने के लिए खुसूसी रकम मुख्तस की जाएगी। मुदस्सर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। बलूचिस्तान में कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद प्लाज्मा अतिया कर रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्लाज्मा अतिया करने वाले अफराद के शुक्रगुजार हैं। कोरोना से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं, सूरत हाल देखकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से फैसला करेंगे। कोरोना वायरस को शिकस्त देने का मौसर तरीन तरीका एहतियात है। बलूचिस्तान में इस मूसरी मरज को शिकस्त देकर जिंदगी की जानिब लौटने वाले अफराद का इस बारे में क्या कहना है, ये बता रहे हैं आसिम रिजवान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 4,500 से ज्यादा अफराद में कोरोना की तशखीस के बाद पाकिस्तान में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसेस की तादाद 56,213 हो गई है। तर्जुमान हेल्थ डायरेक्टोरेट बलूचिस्तान के मुताबिक सूबे भर में अब तक मजमूई तौर पर 5,582 से ज्यादा कोरोना मस्बत केसेस सामने आए हैं, जबकि 53 अफराद इस मौलिक वायरस के हाथों जिंदगी की बाजी हार गए। सूबे भर में मुश्तबा मरीजों की तादाद 25,802 है। ताहम 2,037 अफराद ने बुलंद हौसले, आने अज़्म, एहतियात और हुकूमती हदायत पर मनवान अमल करके न सिर्फ इस जानलेवा वायरस को शिकस्त दी बल्कि अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियां भी महफूज बनाई। मेरे शौहर जो हैं वो भी मीडिया से ही वाबस्ता हैं। पहले उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ, साथ साथ हमारे घर में मुझे भी सिम्टम्स थे। हम सब अपने घर में ही आइसोलेट हो गए। अपने साथ साथ हमने वही एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर्स ने उस पर हमने अमल दरामद किया। मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो खुदा एहतियात करे और मास्क पहने। कोरोना वायरस के खिलाफ फरावल दस्ते में शामिल डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की फर्ज शनासी और लगन मिसाली है। अवामी खिदमत के दौरान वायरस से मुतासिर होने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि वबा के फैलाव को रोकने के लिए अवाम इस मौलिक वायरस को संजीदा लें। लोग इनको लाइट ले रहे, गलत ले रहे, मुझ पे गुजरा है। वायद बलूचिस्तान ने यह फैसला किया है यंग डॉक्टर्स अपने वार्डों में अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देने के साथ साथ वॉलंटियरली कोरोना के ICU वार्ड में एक्स्ट्रा ड्यूटीज देने के लिए तैयार हैं। सूबे भर में कोरोना के फैलाव को कम से कम रखने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी हुकूमती इक़दाम को कामयाब बनाने के लिए यंग डॉक्टर्स का फैसला वक्त की जरूरत और यकीनन काबिल इस्ताइश है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 68,44,000 से तजावुज कर गई है, जबकि 4 लाख के करीब जान की बाजी हार गए। 33,35,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। इटली में ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के सबब होने वाली हलाकतों की शरह कम हो गई है, जहां गुज़िश्ता रोज 85 अफराद हलाक हुए। इससे पहले जुमेरात को 88 अफराद हलाक हुए थे। ताहम मुल्क में ताज़ा मुसद्दिका केसेस की तादाद में अचानक इजाफा हुआ है, जो जुमेरात को 170 के मुकाबले में जुमे के रोज 518 हो गए। इनमें से 402 केसेस इटली के इलाके शिमाली लोम्बार्डे में रिकॉर्ड हुए, जो हलाकतों के हवाले से इटली का सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला इलाका है। इटली में अब तक 33,000 से ज्यादा अफराद हलाक, जबकि 2,34,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले मुल्क अमरीका में अब तक 1,11,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 19,66,000 के करीब अफराद मौलिक वायरस से मुतासर हुए हैं। सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में ब्राजील का दूसरा नंबर है, जहां अब तक 35,000 से ज्यादा अफराद हलाक, जबकि 6,46,000 से ज्यादा जानलेवा वायरस से मुतासर हुए हैं। तीसरे नंबर पर रूस है, जहां 4,49,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना वायरस की तस्दीक और 5,500 से ज्यादा जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन चौथे नंबर पर है, जहां 27,000 से ज्यादा अफराद हलाक, जबकि 2,88,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में बरतानिया 5वें नंबर पर है, जहां 40,000 से ज्यादा अफराद हलाक, जबकि मुतासिर अफराद की तादाद 2,83,000 से तजावुज कर गई है। भारत सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 9,471 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। भारत में मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 2,36,000 से तजावुज कर गई है, जबकि अब तक 6,649 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका के बाद मैक्सिको में भी एक शख्स की पुलिस में की तहवील में हलाकत के बाद हंगामे फूट पड़े। मुबैना तौर पर पुलिस ने एक वर्कर को मास्क न पहनने पर गिरफ्तार किया था, जो पुलिस की हिरासत में ही दम तोड़ गया। मैक्सिको के दूसरे बड़े शहर ग्वाडालाजारा में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद वर्कर की हलाकत के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आई और हुक्काम से जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए, शीशे तोड़ने के बाद इसको आग लगा दी। मास्क पहने मुजाहिरीन ने मैक्सिको शहर में इमारतों को भी नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारत खाने पर भी पथराव किया और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। अमरीका में भी सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की सफेद फार्म पुलिस एहलकार के हाथों हलाकत के बाद हंगामों का सिलसिला जारी है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क में हजारों अफराद की जानिब से नस्ल परस्ती के खिलाफ निकाले जाने वाली रैली में शिरकत करके सबको हैरान कर दिया। कैनेडियन पार्लियामेंट के सामने निकाले जाने वाली रैली में जस्टिन ट्रूडो ने काले रंग का मास्क पहन रखा था। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ निकाले जाने वाली रैली में दूसरे मुजाहिरीन के साथ कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म भी घुटने टेक कर बैठ गए, जिस पर मुजाहिरीन ने उनका शुक्रिया अदा किया। अमरीका में पुलिस एहलकार के हाथों हलाक होने वाले सियाफाम शहरी के हक में टोरंटो समेत कनाडा के कई शहरों में मुजाहरे किए गए। मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले पर काबू पाने के लिए हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से फिजाई स्प्रे किया जा रहा है। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक टिड्डी दल से मुल्क भर के 47 अजला मुतासर हुए हैं। बलूचिस्तान में 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब के 3 और सिंध के 2 अजला मुतासर हैं। तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वज़ीर सैयद फ़खर इमाम ने कहा है कि टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए वाफर मिकदार में केमिकल दरामद कर लिया गया है। बलूचिस्तान और पंजाब के अजला में टिड्डी दल में कमी आई है। रावलपिंडी में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विफाकी वज़ीर ने कहा कि टिड्डी दल से नुकसान उठाने वाले किसानों की मुश्किलात से आगाह हैं। चाइना ने हमें $4.9 मिलियन मुख्तस कर दिए थे एज अ ग्रांट, जिसमें से तकरीबन 3 लाख लीटर्स ऑफ मेलाथॉन आ चुका है, 50,000 लीटर्स ऑफ लैम्डा चाइनीज ने हमें दिया। उन्होंने कुछ हमें स्प्रेज भी दिए हैं, कुछ उन्होंने हमें मास्क भी दिए हैं जो लोग इस काम में कर रहे हैं, बतौर ग्रांट डोनेट की हैं। वो ये भी कहते थे कि हम आपको कुछ ड्रोन्स भी देना चाहेंगे, इनिशियली 50, और वो ये समझते थे कि जो क्रॉप्ड एरिया है वहां वो आप इस्तेमाल कर सकेंगे।
पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुस्तार ने कोरोना और टिड्डी दल के तदारुक और जनूबी पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए बहावलपुर और रुझान मज़ारी का दौरा किया। उन्होंने रहीम यार खान और सादकाबाद समेत दीगर इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना भी किया। ताहिर महर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने सर्किट हाउस बहावलपुर में अरकान पंजाब असम्बली और तहरीक इंसाफ के अहदेदारों से मुलाकात की। मुलाकात में कोरोना वबा, टिड्डी दल और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि जनूबी पंजाब की आवाम के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट के क़याम का वादा पूरा किया है, जबकि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तकर्री की मंजूरी भी दे दी गई है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार रुझान मज़ारी मेरी बंगला गए, जहाँ डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने मेरी बंगले में दीवान खास का दौरा किया और 140 साल पुरानी इमारत के कदीम तर्ज तमीर में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने रहीम यार खान, रुझान, बोंग, सादकाबाद, कोट सफदर समेत मुख्तलिफ इलाकों का फजाई दौरा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने फजाई मुआयने में कोरोना के हवाले से SOPs पर अमल दरामद का भी जायजा ली। ताहिर क्लासा, PTV न्यूज। खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डी दल के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा ज़राअत, PDM में पाक आर्मी और ज़िले इंतजामिया पर मुश्तमिल टीमें इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। तफसील बता रहे हैं अनवर ज़ेब मरवत। खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डी दल के बड़े झुंड अफगानिस्तान से सूबे के 13 अजला शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, देई खान, टांग, लकी मरवत, बन्नू, करक, कोहाट, अंगूर और अगजई, कोरम, खैबर और पेशावर में दाखिल हुए, जिन्होंने इन अजला में खड़ी फसलों को मुतासर किया। महकमा ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा के अहलकारों पर मुश्तमिल 80 टीमें, 78 गाड़ियाँ और ड्रोन समेत मुख्तलिफ किस्म की स्प्रे मशीनें इन अजला में टिड्डी दल के खात्मे की मुहिम में हिस्सा ले रही है। 34 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे की सर्विलेंस और 42,000 हेक्टेयर इलाके पर कंट्रोल ऑपरेशन के बाद टिड्डी दल के खात्मे के लिए अब तक 42,000 हेक्टेयर से ज्यादा मुतासर रकबे पर 22,000 लीटर से ज्यादा जहरों का स्प्रे किया जा चुका है। ये ऑपरेशन तो हमने सबसे पहले 16 फरवरी 2020 से स्टार्ट किया था, जो कि मैच्योर लोकस्ट पर स्टार्ट किया था। जहाँ पर भी निकल आते हैं और बच्चे निकल आते हैं और हमें सर्वेलांस रिपोर्ट मिलती है तो हम उसी जगह पर जाते हैं। टिड्डी दल की एरेडिकेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहले हमने बलूचिस्तान में काम किया है, सिंध में और पंजाब में, और अभी मैं यहाँ पे डिप्यूट हुआ हूँ। महकमा ज़राअत, PDM और पाक फौज के बरवक्त इकदाम से खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डी दल से फसलों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। तमाम देई खान में फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार डेर इस्माइल खान में टिड्डी दल के खात्मे के लिए ड्रोन के जरिए भी स्प्रे किया जा रहा है। महकमा ज़राअत ने किसानों की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन के साथ मोबाइल ऐप भी मुतारिफ कराई है। जो टिड्डी दल के ऑपरेशन जारी है, इसके बारे में महकमा ज़राअत ने हमारे जमीनों पर बहुत ज्यादा स्प्रे किया है। टिड्डी दल के खतरे के पेश नजर किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतासरा अजला में सर्विलेंस और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। सूबे में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है और सूरत हाल की निगरानी की जा रही है ताकि टिड्डी दल से फसलों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अनवर ज़ेब मरवत, PTV न्यूज, लकी मरवत। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी टीम और पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के अरकान का वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर सन्नत व पैदावार हमाद असर, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, चेयरपर्सन FBR और दूसरे आला हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के अरकान ने इजलास को कोरोना वायरस की वजह से टेक्सटाइल की सनत पर पड़ने वाले मनफी असरात से आगाह किया और आइंदा माली साल के बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की। मुशीर खजाना ने यकीन दिलाया कि बजट को हतमी शक्ल देते वक्त इनकी तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। माहौलियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर मलिक अमीन असकम और वज़ीर ममलिकत मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने कहा है कि कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हमें शजरकारी पर भरपूर तवज्जो देना होगी। दुनिया जब इस कोविड से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही है तो एक ग्रीन रिकवरी की तरफ हमें जाना चाहिए और हमारी हुकूमत ने इस चीज़ का तहिया भी किया और अमली तौर पे भी करके दिखाया है कि हम इंशाल्लाह इस ग्रीन रिकवरी में बिलीव करते हैं। ये पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने ये अनाउंस किया कि हमें ग्रीन स्टिमुलस दे रहे हैं और ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जिससे न सिर्फ बेरोजगार लोगों को नौकरियां मिलें बल्कि हम अपने माहौल का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकें।
It's time for nature. Let's revive کہ ہم دوبارہ سے پلانٹیشن کی طرف جائیں. بلین ٹری سونامی بہت خوبصورت پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے. کلین گرین پاکستان بہت خوبصورت پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے. اسلام آباد میں اور ایون پاکستان کے اندر آپ لوگ شاپنگ بیگ کا جو استعمال ہے اس کو بالکل آپ لوگ ختم کر دیں. ہم نے اپنی بیہیویئر چینج ہم نے لے کر آنا ہے کہ ہم نے نیچر سے، درختوں سے، اپنے نیچرل ریسورسز سے محبت کرنی ہے. وہ بیسکلی پاکستان سے محبت کا ثبوت ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پورٹل پر 22 لاکھ شکایات موصول ہوئی ہیں. اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ پورٹل پر شکایات موصول ہونے کے بعد متعلقہ شعبے کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ 3 ہفتے میں شکایت کا ازالہ کریں. شہباز گل نے کہا کہ شہباز شریف لوگوں کی ذاتیات پر بیانات دینے کی بجائے اپنی کرپشن کا حساب دیں. صداقت علی عباسی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے بیشتر سرکردہ رہنماؤں پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں. توانائی کے وزیر عمر ایوب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ کچھ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ڈیلرز کی جانب سے منافع خوری کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کے خلاف اوگرا، SECP اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر سخت اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے ڈیلرز اور کمپنیوں کو عوام کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا اور لائسنس بھی منسوخ ہوں گے. انہوں نے کہا کہ عوام اجرت میں خریداری نہ کرے. ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی کمی نہیں ہے. کاروباری ہفتے کے آخری دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس میں 231 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. مزید تفصیلات بتائیں گے حسن ناصر صدیقی. رواں کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان رہا. تاہم کاروباری ہفتے کے آخری دن 100 انڈیکس 34,367 کی سطح پر پہنچ کر 34,350 پر بند ہوا. انڈیکس میں 231 پوائنٹ کا اضافہ ہوا. انویسٹرز کا اعتماد بڑھتے چلا جا رہا ہے حکومتی پالیسیز پہ. آگے آنے والے دنوں میں جب بھی آپ اسٹاک مارکیٹ کو اوپر دیکھیں گے اس کی وجہ 2 ہی ہوتی ہے. ایک حکومت کی پالیسیز اور دوسری آپ کے اکنامک ڈیولپمنٹ. اگر یہ فرینڈلی بجٹ رہا اور اکنامیکل بجٹ رہا تو آپ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو پھر سے ایک بار تیزی کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے. بازار حصص میں 292 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا جن میں 166 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 102 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 24 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اسٹاک مارکیٹ میں 48,000 شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت 39 ارب 62 کروڑ 71 لاکھ روپے سے زیادہ تھی، جبکہ کاروباری حجم 8 کروڑ 91 لاکھ 34 ہزار روپے سے زیادہ رہا. حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ رشکئی اکنامک زون منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے انتظامات کو جلد حتمی شکل دی جائے. پشاور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ رشکئی اکنامک زون صوبائی حکومت کا فلیگ شپ منصوبہ ہے جس کی تکمیل سے صوبے میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا. وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہتار، بونیر، ڈیائی خان اور صوبے کے دیگر مجوزہ اکنامک زونز کو مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی. اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ ریزولوشن کے زیر اہتمام بھارت کے مظالم اور علاقائی امن کے عنوان سے ایک ویبینار سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں چینی لا فرم کے بانی چینگ یانگ، اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ ریزولوشن کے سربراہ میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد، یاسر رحمان اور دوسرے مقررین نے حالیہ چین بھارت کشیدگی، کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالی اور بھارت کی ہندو ریاست میں تبدیلی کی موضوعات پر تفصیلی روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ بھارت علاقائی استحکام کو داؤ پر لگا رہا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے ہم فیصل آباد سے، جہاں متاثرہ مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں اسپتالوں میں مریضوں کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. تفصیل حافظ محمد علی عابد سے. فیصل آباد میں اب تک 8,504 مشتبہ مریضوں کے کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 5,405 افراد کی رپورٹس نیگیٹو، 1,378 کی پازیٹو، جبکہ 1,721 افراد کی رپورٹس کا انتظار ہے. شہر کے مختلف ہسپتالوں کے 102 ڈاکٹرز کی کورونا رپورٹس بھی پازیٹو ہیں، جنہیں قرنطینہ کر دیا گیا ہے. الائٹ اور سول سمیت شہر کے تمام بڑے ہسپتالوں میں کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے وارڈ مخصوص کر کے ان کا علاج کیا جا رہا ہے، جبکہ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد کو مکمل طور پر کورونا سے متاثرہ مریضوں کے لیے مختص کیا گیا ہے.
कोरोना से मुतासरा मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मुसलसल फ्रंट लाइन सोल्जर्स के तौर पर दिन रात काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिक्स, हमारी स्टाफ नर्सेज दिन रात काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट दिन रात काम कर रही है लोग। लेकिन ये कि अपना हमारी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि लोगों से कि वो एहतियात करें। जिले हुकूमत की तरफ से पारस और डीसी यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस के करंटीना सेंटर्स में बैरून मुल्क से आए हुए मुसाफिरों की निगहदाश्त की जा रही है। फैसलाबाद में कोरोना की वजह से अब तक 51 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 127 अफराद सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दाम के साथ साथ अवाम की तरफ से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद इस वबा से बचाव में मददगार साबित हो सकता है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में रवां साल मानसून सीजन के दौरान अच्छी बारिशों की पेशगोई की है। इस साल मजमूई तौर पर 10% ज्यादा बारिशों का इम्कान है। कश्मीर और सूबा सिंध में मामूल से 20% ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। बारिशों के बाद नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब के बास मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी रात को बास मकामात पर हल्की और तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम खित्ता कोटवार समेत पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान सिंध के अजला में भी बास मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जैकबाबाद और मोहनजोदाड़ो मुल्क के गर्म तरीन मकामात रहे, जहां पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नौकुंडी में 44, लाड़काना, तुर्बत, दालबंदीन में 44, सिब्बी और सखर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूं है। इस्लामाबाद 34, लाहौर 38, कराची 37, पेशावर 37, कोयटा 35, गिलगित 34, मुजफ्फराबाद 35, चित्राल 35, मरी 21, फैसलाबाद 37, मुल्तान 38, दीर 31, लद्दाख 16, श्रीनगर 25, जम्मू 34, रावलाकोट 23, पुलवामा 25, अनंतनाग में 24, शोपियां 24 और बारामूला में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीजन 2020-21 में खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। 1 जुलाई से नाफिजुल अमल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अनम अमीन और उमैमा सुहेल समेत 9 खवातीन क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल तमाम कैटेगरीज के मुआवजों में इजाफे के साथ साथ डोमेस्टिक इवेंट्स के मुआवजों में भी इजाफे का ऐलान कर दिया है। नौजवान क्रिकेटर्स को खेल की तरफ रागिब करने के लिए एक नई इमर्जिंग कैटेगरी मुतारिफ कराई गई है। चीफ सिलेक्टर कौमी खवातीन क्रिकेट उरूज मुमताज का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऐलान से कबल सिलेक्शन कमेटी ने तवील मुशावरत की और गुज़श्ता 12 माह के दौरान कौमी खवातीन खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेन क्रिकेट के हेड कोच के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की, जबकि बिस्मा मारूफ कौमी विमेन टीम की कप्तान बरकरार रहेंगी। PCB ने बिस्मा मारूफ को सीजन 2020-21 के लिए कप्तान बरकरार रखने का ऐलान किया है, जबकि हेड कोच इकबाल इमाम को हटाने का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की जाएगी। हेड कोच के तकर्रुर के लिए इश्तिहार मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर बतौर इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर 11 जून को उमर अकमल की जानिब से दायर अपील पर समाअत करेंगे। इस हवाले से दोनों फरीकैन पीसीबी और उमर अकमल को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 27 अप्रैल को रिटायर्ड जस्टिस फजले मीरा चौहान ने बतौर चेयरमैन डिसिप्लिनरी पैनल दो मुख्तलिफ मौके पर पीसीबी के एंटी करप्शन कोड की शिक 2.4 की खिलाफ वर्जी करने पर उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद की थी। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर की जानिब से फैसले तक पीसीबी इस मामले पर मजीद तबसरा नहीं करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया शफीक, आपने में खेल की खबरों से आगाह किया। इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। रिजवान अली अहमद और समीना राना को न्यूज टीम के हमरा इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में वापस आएंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अब सारे दिल थाम के बैठो, सच्ची चाह की बारी आई। जन्नत की यानी खैबर पख्तूनख्वा की बारी आई। ये खित्ता मेहमान नवाजों और दलेरों की बस्ती है, यानी शेरों की बस्ती है। इस खित्ते में मिलेंगी खेती बाड़ी और जरखेज जमीन और पसीने में डूबी शफाफ जबीन। कुछ बाबा रहमान के मिसरे और खुशहाल खटक की नज़में, कुछ तारीख के खुले दरीचे, कुछ माजी की अनमिट रस्में। किस्सा खानी से मिलते हैं तीखे खाने, जिनसे सीखे हर पकवान में गरम मसालों के अफसाने। रंगों और सुरों की संगत यो मालाई लगती है कैलाश की रंगत। बहुत पुराने हैं चित्राल के महल और उनके गहरे साए। बागों में कुदरत ने कैसे रंग खिलाए। ख्वाबों जैसी वादी में शंदूर का मेला, जिसकी बाजी हर अलबेला खुलकर और जी जान से खेला। हुस्न के है शाहकार सवाद और मालम जब्बा, बर्फ की शालें ओढ़े हैं कौसार निराले, पाक सफेद जबीनों वाले। दूर कहीं कालान के सब्जाजार और कलियां जैसे कोहे काफ की गलियां। एक तरफ नारान की जन्नत, एक तरफ कागान की जन्नत, बीच में परियों वाली झीलें। जो लब इनसे पानी पी ले, जन्नत के कुछ लम्हे जी ले। लोलो पत्सर झील का ठंडा मीठा पानी, जिसकी सब्ज मिठास पिए सब और जिए सब। जीते जीते गाएं नगमे, पश्तो और हिंदकों के खट्टे मीठे लहजे। खटक का रक्स और इसके फेरे, अतड़ की ताल के मस्त झकोरे। बाबू सर का खुशबू से भरपूर ये जादू, जादू जो सर चढ़कर बोले। दर्राए खैबर इस बस्ती में बसते हर जानान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत,
हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। सनती मालिकान मुतवज्जे हों, कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी आयद करें, थर्मल स्कैनिंग की सहूलत यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन के लिए मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन को 8 घंटे के दौरानिये के हिसाब से 2 शिफ्टों में तकसीम करें। कोरोना वायरस की अलामात की सूरत में मुतासरा मुलाजिम की दफातर या काम की जगह पर आने जाने पर पाबंदी आयद करें। आगाही मुहिम के हवाले बैनर्स आवेजा करें। दफातर में या काम करने वाली जगह पर बार बार हाथ धोने की सहूलत मौजूद हो। मालिकान और कारकुनान के कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे करें। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। स्टाफ के दफातर या काम की जगह आने जाने के लिए जराए आमदोरफ्त में एहतियात बरती जाए ताकि हजूम से बचा जा सके। स्टाफ को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि काम के दौरान या कोई चीज खाते हुए एक दूसरे से कम 2 मीटर का फासला रखा जाए। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। सब खुददार कोई हरीज जो कर ले ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो तंग होती है मेहनत कशों की ही रोजी। ये खाली लौटे तो खूब इनके बच्चे रोते हैं, बिलक के भी न मिले कुछ तो भूखे सोते हैं। ये सोचिए कि जो है सारे काम धंधे बंद तो भूख से ही न मर जाएं ऐसे हाजतमंद। सखी हैं आप, सखावत की आज हद कीजिए और ऐसे लोगों की दिल खोल कर मदद कीजिए। अगर न उम्रा हज आप कर सके इस साल, गरीब को उन्हीं पैसों से दीजिए रोटी दाल। खुदा के बंदों की खिदमत में असल राहत है कि कायनात की अफजल क्या एंटीबायोटिक से कोरोना का इलाज मुमकिन है? जी नहीं, एंटीबायोटिक अद्वियात वायरस के खिलाफ मौसर नहीं होती। ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ काम आती है। चूंकि कोरोना भी वायरस है, इसलिए एंटीबायोटिक अद्वियात इस पर असर नहीं करते। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। सुनते थे दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी, फिर सुना दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है और अब तो लगता है दुनिया समझकर हमारी मुट्ठी में आ गई है। हर लम्हे कोई अपडेट, कोई ना कोई खबर, कुछ ना कुछ नया। इसीलिए हम आपके लिए ला रहे हैं वर्ल्ड इन व्यू। पूरे हफ्ते दुनिया भर में होने वाली सब न्यूज और अपडेट ताकि कुछ मिस ना हो। वर्ल्ड इन व्यू देखिए हर हफ्ते रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आजमा हुआ जाता है।